Okay, good morning, class. Hello. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. So can you see the board? I've shared something. I've written something. Let's just. I hope today it's clear. So last class we were talking about what were the topics that we covered. We covered Bohm's calorimeter. We talked about gross calorific value. We talked about the corrections of the gross calorific value, and then we came down to NCV और नेट कैलोरीफिक वैल्यू. तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस का बेसिक डिफरेंस जो हमने पढ़ा था वो ये था कि नेट के केस में वी आर रिड्यूसिंग दी अमाउंट ऑफ हीट दैट वाटर वेपर कैरीज अवे विद इट अगर आप ओपन एटमॉस्फेयर में कंबस्शन करते हो. ठीक है. तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला एक हमने बताया था जीसीवी का. इट हैज ऑलरेडी बीन गिवन इन योर स्लाइड, सो यू कैन रेफर बैक टू दैट. तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू का हमने ये फॉर्मूला लिखा था. सो 0.09 क्यों आता है दैट आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड कि एच अगर आपका परसेंटेज में गिवन है, हाइड्रोजन परसेंटेज में गिवन है, देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय 100 एंड दैट इज हाउ वी आर हैविंग दिस 0.09. ठीक है. 9 क्यों आता है उसका रीजन मैंने ऊपर दिया है. लाइक यू ऑलरेडी नो कि हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, ऑक्सीजन का इज 16. So when we look at it in your reaction between hydrogen and oxygen, which gives you water, what do you find? You find that two hydrogens react with the oxygen. So as we already know the molar mass of the oxygen, we write it here as 16. So what is the total weight or the total mass of this water molecule? It's 18. ठीक है. तो अगर आप पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे then you will get the value 1:8:9. Okay, that is how we get your 1:8:9 और that is where यहाँ से आपको 9 मिलता है. ठीक है. That is what we were talking about. Fine. तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है एनसीवी का कि कहाँ से वाटर वेपर्स का 9 पार्ट आता है और कहाँ से आपका कहाँ से आपका ये पूरा कैलकुलेशन निकल करके आती है. तो यू बेसिकली हैव अ फॉर्मूला ऑफ एनसीवी इज इक्वल्स टू जीसीवी माइनस 0.09 into percentage of hydrogen in the fuel and into your theoretical value of latent heat of condensation or latent heat of steam, which is your 587. Okay. तो जब भी आप एनसीवी कैलकुलेट करेंगे यू विल यूज दिस वन पर्टिकुलर फॉर्मूला. तो ये आपका बॉम्ब्स कैलोरीमीटर का जीसीवी और एनसीवी का कॉन्सेप्ट है. यू कैन नोट इट डाउन इन अ पेपर. आई समराइज दिस. कहाँ से आई हैव गिवन द रीजन व्हाई वी टेक 0.09 and how do we get this particular 9 parts. So one hydrogen or one part of hydrogen gives you and 8 parts of oxygen gives you 9 parts of water. So that is what we take 9 here. So today we are going to start with a new topic which is your Boy's calorimeter. आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लो. Then I'll share the screen. Specialty is making all your app building. Okay, so let's just wait for other students to join in. Till the time I will write about the Boy's calorimeter. तो हम आज पढ़ेंगे. सॉलिड है नॉन वॉलेटाइल लिक्विड. ठीक है. दोनों का डिफरेंस ये है कि जो बॉम्ब्स कैलोरीमीटर है दैट यूजेस योर that actually is used for solid and non-volatile liquids, whereas Boy's calorimeter is used for your liquids and gaseous fuels. Okay. So let me share the screen with you. तो इसका कॉन्सेप्ट
I've already told you. Next is your numerical. You can calculate the net calorific value by using that similar formula which I already wrote on the board. So today move to the next topic. So this is your voice calorimeter. Okay. So real image is already given on the right side of the screen, on the right side of the slide, and then there is a schematic. So we will move to the next slide first. तो बॉयज कैलोरीमीटर, जैसे कि बॉन्स कैलोरीमीटर का कंस्ट्रक्शन था, सिमिलर वे में बॉयज कैलोरीमीटर है. तो बॉयज कैलोरीमीटर में क्या है, दो तीन कंपोनेंट्स है. फर्स्ट इज योर गैस बर्नर. देयर आर टू थर्मोमीटर्स and then there is a copper coil. ठीक है, तीन and a container. Okay. So ये कुछ components हैं जो main components है. First is when we talk about Boyce calorimeter, we talk about a gas burner, two thermometers, and then we have a copper coil. Okay. So this is what your gas calorimeter has. Let's move back to the schematic and the slide. Okay. So schematic में, as you can see, एक chamber और या एक container दिया हुआ है, and that chamber has got, like this is a simple construction. There is a plane here, and then there are lot of coils on the either side. ठीक है, इस टाइप का कुछ कंस्ट्रक्शन है. Let's just refer to the schematic for a better understanding. ठीक है. So as you can see it in the slide, Boyce calorimeter has got two containers. Just look at the bottom of the image. So the first is the outer container, and then there is a container which has got the noting as condensed steam, or this small container. If you can see the cursor moving, this is for your condensed steam. Now let's get inside the chamber, the combustion chamber. So first thing that we see is gaseous liquid or fuel entering a gas burner. So there is a burner at the bottom of the chamber, and then we see two coils moving inside the chamber and outside also. See, outer copper coil and inner copper coil. Okay. On the top of this particular schematic, there are two thermometers. Like I just told you, there are two thermometers. First, this is your burner. Then these are your copper coils. And then there are two thermometers. These are your thermometers. ठीक है, ये दिया आप इमेज में देख सकते हैं. ठीक है, बेसिक समझने का बात ये है कि एक नोन अमाउंट ऑफ गैस इज अलाउड टू बर्न थ्रू दिस गैस बर्नर. जो एक बर्नर आपको दिया हुआ है यहाँ पे स्कीमेटिक में शो कर रहा है, एक नोन वॉल्यूम ऑफ गैस इज अलाउड टू बर्न. तो उसकी कंबस्शन से कितने क्या प्रोड्यूस होता है, हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा था कि कंबस्शन अगर आप किसी फ्यूल का करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो वी ऑलरेडी नो कार्बन डाइऑक्साइड इज लाइक इसका मेजरमेंट नेग्लिजिबल है. So we are not considering it in this current topic of discussion. We are only talking about your water. So जो आपके components combustion of gas में release होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है and water है. So you can see the water that is produced is collected in the container kept at the bottom, which has got the notification condensed steam. So why are there two copper coils and two thermometers? ये समझने के लिए है. Principle of Boyce calorimeter. Okay. So what is the principle of Boyce calorimeter? Principle is record change
in temperature flowing outside, then inside the chamber, and then again to the outer side. ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को चेक करने के लिए दो थर्मोमीटर्स हैं. तो इसमें बेसिकली एज यू कैन सी इन द इमेज एक इनर कॉपर कॉइल है, ठीक है, जो इसके अंदर है, और एक आउटर कॉपर कॉइल है जो इमेज में आप देख सकते हो. ठीक है, so what is happening, we are flowing water, there is a water inlet written on the schematic on the right side, this part. So this is your water inlet. So यहाँ से क्या है, एक नॉन टेम्परेचर का वाटर आप इसमें पूरे चेंबर में, कंबस्शन चेंबर में फ्लो कर रहे हो. ठीक है, so this water is moving from outside copper coils to your inside copper coils. वहाँ पे जाके ये वाटर हीट अप हो जाता है. ठीक है, प्रिंसिपल हमें पता चल गया. प्रिंसिपल इज नोट द चेंज इन टेम्परेचर as the water moves from your outside copper coils to inside copper coils. So basically what is happening, water is flowing from this outer copper coils inside the chamber, जहाँ पे कि आपका फ्यूल बर्न हो रहा है. ठीक है, जो इनर कॉपर कॉइल्स में शो कर रहे हैं यहाँ पे, और यही सेम वाटर आपका बाहर एक जो बड़ा कंटेनर है उसमें कलेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो ये जो वाटर का चेंज इन टेम्परेचर है, सेम आपका कॉन्सेप्ट है विच इज योर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो जितना फ्यूल कंबस्शन ऑफ जितना एनर्जी कंबस्शन ऑफ फ्यूल से रिसीव होगा उतना ही चेंज इन टेम्परेचर होगा. दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट विच बोथ द कैलोरीमीटर्स आर फॉलोइंग. ओके, बॉयज कैलोरीमीटर का भी सेम यही कॉन्सेप्ट है, बॉम्ब्स कैलोरीमीटर का भी यही कॉन्सेप्ट है. वाटर इज फ्लोइंग इनसाइड. कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है बिकॉज एक में सॉलिड फ्यूल है, दूसरे में लिक्विड या गैशियस फ्यूल्स हैं. तो कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है. बॉम्ब्स कैलोरीमीटर में फ्यूल जो था वो क्रूसिबल में रखा हुआ था. ठीक है, क्रूसिबल में रखा हुआ था. वेराज इन केस ऑफ योर बॉयज कैलोरीमीटर एक गैस चेम्बर यूज किया है. सो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है. जैसे ही वाटर अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर में चेंज होगा, एंड दैट इज द टेम्परेचर चेंज वी आर नोटिंग डाउन along with the amount of steam that is collected at the bottom. So steam कितनी collect हुई उसका आप यूज करते हो नेट कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट करने में, बट अदरवाइज फॉर ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू वी आर टेकिंग द टोटल अमाउंट ऑफ हीट दैट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द चेम्बर. ठीक है, तो ये आपका स्कीमेटिक है बॉयज कैलोरीमीटर का, और इसमें 4 पार्ट्स है. फर्स्ट इज योर गैस बर्नर विच अलाउज अ नोन वॉल्यूम ऑफ गैस एट नोन प्रेशर टू बी बर्न at a uniform rate. Then there are copper coils. So there are two types of copper coils, the outer copper coils and the inside copper coils. So इनका basic function है to allow the flow of water from inside to outside the chamber. और temperatures measure करने के लिए we have two thermometers. The first thermometer helps you to measure the temperature initially, and then the second helps you to measure the temperature as the water or the hot water moves out of the chamber. ठीक है, ये दो पर्पज है. देन there are two containers which you can see at the bottom. ठीक है, ये पार्ट्स है. वर्किंग क्या है? So working is burning of fuel and circulation of water are continued for about 15 minutes for initial warm up. Then when the calorimeter is warmed up, the rate of flow is adjusted such that the water leaves the apparatus at atmospheric pressure 1. So basically पहले थोड़ा सा इसको इनिशियल वार्म अप करते हैं जिससे कि एकदम से टेम्परेचर चेंज हमें नहीं मिले, एक स्टेबिलिटी आ जाए पूरे आपके चेम्बर में. देन एज द टेम्परेचर बिकम्स स्टेबल और इट बिकम्स अ लिटिल बिट वार्म्ड अप, वी अलाउ अ नोन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड फ्लो ऑफ वाटर एट अ नोन रेट. ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू दीज कॉपर कॉइल्स. So heat produced by the fuel is transferred to the water flowing in the copper coil, and the steam produced during the combustion is collected outside the chamber. So this is understandable. Students, I would like to tell you
that these schematics are important for your examination point of view. So कभी कभी क्या होता है, प्रिंसिपल आ जाता है और स्कीमेटिक ड्रॉ करने के लिए भी आ जाता है. सो ये जो दोनों चेम्बर्स हैं इनके स्कीमेटिक और इस चैप्टर में आने वाले और भी जो स्कीमेटिक्स हैं लाइक बी हाइव ओवन है, ओटो हॉफमैन ओवन है, इसके स्कीमेटिक्स आपको याद करने होंगे फॉर एग्जामिनेशन पर्पज. सो दिस वाज अबाउट योर बॉयज कैलोरीमीटर. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि टेम्परेचर डिफरेंस नोट कर रहे हैं. व्हेन द वाटर फ्लोज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, व्हाट इज हैपनिंग, अ नोन वॉल्यूम ऑफ गैस इज बर्न्ड एंड द कंबस्शन प्रोडक्ट इज कलेक्टेड इन द कंटेनर एज स्टीम. ठीक है, अब इसमें पैरामीटर्स जब हम कैलकुलेशन करते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू की फ्रॉम फॉर अ बॉयज कैलोरीमीटर, जैसे कि आपने कोई लिक्विड फ्यूल या कोई गैसियस फ्यूल बर्न किया, तो उसकी क्या क्या पैरामीटर्स, इफ यू आर लाइक you yourself are doing a calculation or you are yourself are using a boys calorimeter, तो आप क्या क्या पैरामीटर्स नोट डाउन करोगे which will help you derive the formula. So the first parameter that you are going to note down is the volume of the fuel. The volume of the fuel is your V is the Q. Weight of the water taken, it's W. Okay. Second, the weight of the water condensed during this time. Weight of the water condensed during this time means your steam. Weight of the water, steam, I'm just writing it in the bracket. This is your M. It's denoted by M. Then there is a change in temperature, which is your T2 minus T1. So, what is happening? Gross calorific value, like earlier, it is denoted as capital C. So what is happening? The heat that is evolved during the combustion of a known amount of fuel will be taken up by water inside the water flowing inside the chamber. Same concept here. So what are we doing? Heat absorbed by circulating water is equals to weight of the water into temperature difference. Heat produced by the combustion of fuel is volume of the fuel into its C value और calorific value. वो नहीं है तो वही डलवा दो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. So when we talk about this formula, let me write the formula. So gross calorific value, your total calorific value, what is it equal to? It is equal to your weight of the water, change in temperature over volume of the fuel. ठीक है, ये आपका gross calorific value है which comes from this particular formula. So this is about your gross calorific value calculated using your Boyle's calorimeter. We will do a small numerical over it. So GCV is equals to W T2 minus T1 over your volume of your fuel. So ये values put करते हैं अभी. So the first value or the weight of the water given that is used is 50. What is the change in temperature? Change in temperature is 46.5, which is your T2, or the temperature of the outlet. Like you can see here, temperature of the outlet minus temperature of the inlet, which is your 26.1 over your volume of fuel that has been taken, which is your 0.098 meter cube. So, can any student do this formula, or can any student give me the value for this answer, the GCV for this particular question? बताइए आप लोग कोई क्या वैल्यू आई है? Has anyone calculated it? Okay, let me write it down. So the answer is
I've already given it in the numerical. You can look into that. The answer comes down to 104.08 into some 2 calories per meter cube. Okay, यहाँ पे यूनिट चेंज होगी तो यूनिट goes to calorie per meter cube. So why it goes to calorie per meter cube? It's not visible here, so I'll write it here. 1040.812 calories per meter cube. So this is what it comes down to, your gross calorific value. Similarly, using that same formula, we can calculate the net calorific value. So the formula for net calorific value is NCV is equals to GCV minus weight of water over volume of fluid into 587. That is your theoretical value for latent heat of vaporization of water or latent heat of steam. So using this formula, you can calculate the GCV for that same question that is there shown there on the screen. So that just look for it in the solutions that I have given you. Let's move on to the next topic. So yeah, the formula, I already wrote that formula on the board. So M is the mass of the steam condensed. V is your volume of fuel that you have taken into 587. So that is how you are going to calculate it. So let's go to the next topic, which is your Dulong's formula. Sneha, are you there? Sneha, has she joined? Yes, ma'am. today? I'm here. Okay. Okay, good. So you are asking about Dulong's formula. So बच्चे क्या होता है कि बॉयल्स और बॉम्ब्स कैलोरीमीटर के केस में यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन. ठीक है, आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, चाहे वो बॉम्ब्स कैलोरीमीटर है या बॉयल्स कैलोरीमीटर है, एंड यू आर experimentally calculating the theoretical the gross calorific value. ठीक है, but bombs this Dulong's formula के केस में what happens, it helps you calculate the value theoretically. जैसे कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है बट आपको एक कहीं एक क्वेश्चन है या कहीं पे से आपको एक डेटा आपको मिल गया है विच इज गिविंग यू द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन इन द पर्टिकुलर फ्यूल. जैसे कि कोई एक सैंपल है, कमर्शियल सैंपल, जैसे अगर आपको दे दे, ठीक है, कोल का एक कमर्शियल सैंपल आपको दे दिया, ठीक है, और उस कोल के कमर्शियल सैंपल में देयर इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ कार्बन, सर्टेन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, देन सल्फर एंड ऑक्सीजन. ठीक है, ये आपको बता दिया गया है कि लाइक इट्स 90, देन इट्स 1, सम वैल्यू. ठीक है, so how are you going to calculate the calorific value at your end theoretically? So Dulong is a scientist. He designed that formula for theoretical calculation of calorific value using the percentage composition. So bombs or boils calorimeter is an experimental method. ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट परसेंटेज, अगर आपको सिर्फ एक सिंपल डेटा दिया हुआ है एंड देन यू आर कैलकुलेटिंग द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ थ्योरेटिकल कैलोरीफिक वैल्यू, तो उसके लिए यू आर गोइंग टू यूज द Dulong's formula. ये बेसिकली दोनों का डिफरेंस है. बॉम्ब्स और बॉयल्स कैलोरीमीटर थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है. Dulong's formula इज योर theoretical method for calculation of calorific value. एक फ्यूल के बर्न होने से कितनी एनर्जी रिलीज हुई है. So what is the formula? The formula is GCV, gross calorific value, is equals to 1/100 into percentage. What was the calorific value for carbon? It's 80C minus 3450 into X minus O by A plus 2240S. This is the formula. ठीक है, 2240S.
This is the formula, Dulong's formula for theoretical calculation of calorific value. Okay. Let's go back to the previous slide. Yeah. So the theoretical calculation of calorific value of fuel, the calorific value of carbon, hydrogen and sulfur, it is already given in the literature. So what are the values? The calorific value of carbon is 8080, whereas for hydrogen, as you can see, it's 34,500. For sulfur, it's 2240. Okay. So ये कैलोरिफिक वैल्यूज जो थ्योरेटिकल कैलोरिफिक वैल्यू है फॉर इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स लाइक फॉर कार्बन, फॉर हाइड्रोजन, फॉर सल्फर. डुलॉन्ग डिजाइन्ड अ फॉर्मूला फॉर यूजिंग दीज कैलोरिफिक वैल्यूज. तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता है एक्सपेरिमेंटल आपकी जो एक्सरसाइज है उसको. इफ यू हैव अ कार्बन परसेंटेज, इफ यू हैव अ हाइड्रोजन परसेंटेज, सल्फर परसेंटेज, यू कैन जस्ट पुट इन द वैल्यूज एंड कैलकुलेट दी ग्रॉस कैलोरीज वैल्यू. ठीक है. अब उसमें इस फॉर्मूला को कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो 1/100 क्यों दिया है? 1/100 इसलिए दिया है बिकॉज कार्बन में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज में आपको कॉम्पोजिशन दी गई है. ठीक है. सो टू रिड्यूस दैट और सिंप्लीफाई दैट वी हैव 1/100. So 8080 is basically जो theoretical value है, calorific value है carbon की into the percentage that is given. You will understand it more when we will use it in the formula. So just look at it. ये कार्बन का वो है परसेंटेज है, कैलोरी निकालने का तरीका है. Then it's your hydrogen and oxygen, and the last is your sulfur के लिए 2240 into the percentage of. ये सर्च. मैम ये जो डुलॉन्ग्स फॉर्मूला है इसमें ये मतलब मैंने नेट पे और बुक्स में देखा तो ये माइनस जो है वो प्लस है एक्चुअली. आपने कहाँ पे देखा? मैम बुक्स में एंड इंटरनेट पे देखा मैंने. यस मैम, मैं करंटली इंटरनेट पे देख रहा हूँ. तो उसमें 8080 C plus 3455. I got it. Oh, I sorry. got it. It was a mistake at my end. Just corrected it here. ठीक है. So basically this is your positive. This is your this. सब कुछ add करना है basically if you are talking about calorific value. So what are we doing here? We have taken the percentage of this carbon, the calorific value. Then we have for hydrogen and oxygen, and then we have for sulfur. तो इसको तो आप समझ सकते हैं बेसिकली कि ये कहाँ से आ रहा है. ठीक है. 34,000 भी लिटरेचर में ऑलरेडी इज गिवन फॉर हाइड्रोजन. इट्स हाइड्रोजन कैलोरिफिक वैल्यू. एंड देन वी हैव फॉर सल्फर. द ओनली थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज how this H minus O by 8 is coming. Sneha, where was your question? Ma'am, I just want the overview of this topic. Okay, so अभी तक समझ में आया? फॉर्मूला समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है. So we were talking about H minus O by 8, which is important to understand in this. So एक बेसिक सिंपल कैलकुलेशन मैंने कराई थी जब आप जो बाकी स्टूडेंट्स जो अर्ली स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे थे कि इफ यू आर गिवन 32 grams of hydrogen, 32 grams of oxygen and 8 grams of hydrogen. So how will it combine in water? इसको समझना था. H minus O by 8 की अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी. So there was a question which I gave you. 8 grams of hydrogen and 32 grams of oxygen is given to you. This is what I wrote. This is what I told you to understand H minus O by 8. ठीक है. एक normal question हमने ले लिया था which said 8 grams of hydrogen is given, 32 grams of oxygen is given. Okay. So we already know कि hydrogen और oxygen 1:8:32
9 के रेशियो में कंबाइन करते हैं। तो अगर 8 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन अगर 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू अगर यूज हो जाए और वाटर फॉर्म करे तो कितनी हाइड्रोजन बचेगी? दैट वाज कैलकुलेटेड बाय व्हाट? एनी स्टूडेंट हु वाज देयर इन द प्रीवियस क्लास, कैन दैट स्टूडेंट हेल्प? बताओ कोई, एनीवन? I told you 4 gram. 32 divided by 8 because 8 parts is required, so we have 4 grams. तो 4 ग्राम ऑक्सीजन इस 8 ग्राम में से यूज कर ली जाएगी फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ओके, और अगर सेम क्वेश्चन को अगर आगे बढ़ाते हुए अगर इसको O ग्राम्स कर दिया जाए तो कितनी ऑक्सीजन कितनी हाइड्रोजन अवेलेबल होगी या रिक्वायर्ड होगी यूजिंग दैट सेम फॉर्मूला? O/8. या राइट, O/8, गुड। तो अब पता चल गया ये O/8 कहाँ से आया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना है वो ये कि इसको माइनस क्यों करते हैं, व्हाई डू वी रिड्यूस दिस? So students understand this. This is the total hydrogen present. Can you see the screen if you can do that? Total hydrogen. इसको समझ लो, ये H minus O/8 में H is the total hydrogen that we are using. O/8 हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो कि वाटर ने ऑलरेडी यूज कर ली है, कंबाइन कर ली है। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, लेट मी टेल यू, कोई भी फ्यूल होता है उसमें जो कंपोजिशन अगर उसकी होगी तो उसमें सिंगल एलिमेंट्स तो होंगे ही, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सिंगल तो होंगे, बट देयर विल बी मॉइस्चर आल्सो प्रेजेंट इन दैट फ्यूल। तो कुछ ना कुछ मॉइस्चर, कुछ ना कुछ हाइड्रोजन ऐसी होगी जो कि वाटर के या ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर की फॉर्म में फ्लूइड में प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो जैसे कि ये कोल का पीस है, ठीक है, ये सल्फर होगा, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इसमें से ये जो टोटल हाइड्रोजन है इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो there are two main assumptions or two main understandings that we have to take in take in consideration. Oxygen is not present freely. Let's start with this. It is a coal piece. It has got different elements. It has got some hydrogen, and there is a second thing that you need to take care of. Your oxygen is not present freely. So how is it present? Oxygen is present with water or in combination of water, H2O. तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन फ्री प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोजन से कंबाइन कर दिया। तो व्हाट इज हैपनिंग, some part of hydrogen is getting used up by water, so that hydrogen is not available for consumption or for combustion. तो ये जो 4 ग्राम है जिनसे आपको एक एग्जांपल दिया था, this 4 grams is not available. So on that same line, this H minus O/8, this O/8 is the hydrogen which is not available for combustion. This is the total hydrogen. This part is your hydrogen not available for combustion. ठीक है, तो जब भी आप कैलोरीफिक वैल्यू की बात करेंगे तो इट्स लॉजिकल टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ वही हाइड्रोजन की बात होगी जो कि कंबस्शन के लिए अवेलेबल है।
So this is why we reduce the hydrogen combined with the water or oxygen from the total hydrogen. So ये एक basic overview है Dulong's formula का कि कहाँ से H minus O by 8 आया. So H minus O by 8 is nothing but O by 8 is the amount of hydrogen which is used by oxygen to form water in that hole. Let me write the Dulong's formula up here. Calorific value of carbon, theoretical calorific value into percentage of carbon plus 34,500 into percentage of total hydrogen minus percentage or the amount of hydrogen which has been used or consumed by oxygen to form water. So it can also be given in this form plus your 2240 into percentage of sulfur. ठीक है. अब इस पूरे फॉर्मूले के सारे पैरामीटर्स क्लियर हैं सबको? स्नेहा, Yes, ma'am. डू यू हैव एनी डाउट नाउ? No, ma'am. अच्छा, हम बस ये पूछ रहे थे H हाँ minus रियलाइज कि अगर हम O by 8 लेते हैं तो it gives you the hydrogen that is combined with your oxygen. ठीक है, ये O by 8 से आता है. अब से मैं अपना क्वेश्चन पूछूं, बताओ. okay, ma'am. कोई डाउट है तो पूछो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज No, ma'am. हो गया. ठीक है, क्लियर है. So Yes, ma'am. students, I expect you to do I have already given you the solution and I expect you to do the numerical for this particular Dulong's formula और इसकी gross calorific value और net calorific value same method से calculate होगी. So when we talk about its net calorific value, what are we doing? Let me share the slide. नेट कैलोरीफिक वैल्यू के लिए वी आर यूजिंग दैट सेम फॉर्मूला जो कि हम यूज करते हैं, which is your NCV is equals to GCV की जो भी वैल्यू आएगी आपकी माइनस 0.09 587. ठीक है, so we have already taken the component of water here, so we can take the total hydrogen. Had we not taken it, then we would have done H minus O by 8. But now, as we have already taken the component of water, we can take the percentage of hydrogen. So this is how you calculate your net calorific value, and I expect कि next class में questions आप solve करेंगे. मैम मैम ये 0.09 H में हाइड्रोजन वही लेनी है ना जो हमारी रिमेनिंग रह गई. हाँ हाँ, नहीं, इसमें हाइड्रोजन वो नहीं लेनी है जो रिमेनिंग रह गई. इसमें हाइड्रोजन वो लेनी है जो कि आपकी टोटल है, बिकॉज यहाँ पे आप वाटर के कंटेंट की ऑलरेडी बात कर रहे हो ना, तो ऑक्सीजन को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. ठीक है, अगर आप इसमें वाटर का कंटेंट ऐड नहीं करते, 9 पार्ट्स ऐड नहीं करते, देन यू वुड हैव टेकन H minus O by 8 और द रिमेनिंग हाइड्रोजन. बट क्योंकि आप ऑलरेडी वाटर के कंपोनेंट की बात कर रहे हो, तो यू कैन टेक द टोटल हाइड्रोजन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है,
So this is all about your Dulong's formula, and you have to calculate the net calorific value and gross calorific value for this particular question. So I'll just put the values. You can do the calculation. MCV GCV is equals to 8080 into your 82 plus 34500 into percentage of hydrogen, which is your 8, minus percentage of oxygen, which is your 5 over 8, plus 2240 into percentage of sulfur. अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन की वैल्यू क्यों नहीं ले रहे और ऐश की वैल्यू क्यों नहीं ले रहे? कोई गेस करके बता सकता है? क्वेश्चन में आपको एक डेटा दे दिया है, एक होल के सैंपल का डेटा दे दिया, जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, नाइट्रोजन दे दिया, बट ड्यूलोंग सर ने नाइट्रोजन की वैल्यू पुट इन नहीं करी है या ऐश की वैल्यू पुट इन नहीं करी है। इसके पीछे रीजन ये है कि नाइट्रोजन और ऐश दोनों ही कंबस्शन में हेल्प नहीं करते, बर्निंग पे कोई हीट रिलीज नहीं करते। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आप किसी भी स्टूडेंट के माइंड में कि नाइट्रोजन और ऐश क्यों नहीं यूज़ किया ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को ऐड करते टाइम फॉर्मूला में, जब हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर रहे थे। तो इट्स बिकॉज आपको एक जनरल क्वेश्चन दिया है जिसमें कंपोजिशन दे दी गई है एक फ्यूल की, बट यू हैव टू चूज वाइजली कि कौन से कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हैं। सो नाइट्रोजन एंड ऐश, एज यू नो, ऐश इज अ इनऑर्गेनिक मिनरल एंड नाइट्रोजन ऑल्सो डज नॉट हेल्प इन or does not go in combustion process, so आपका कोई हीट रिलीज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उनकी कोई कैलोरीफिक वैल्यू मेंशन नहीं करी है इन ड्यूलोंग्स फार्मूला। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ड्यूलोंग्स फार्मूला, बॉयज फार्मूला और बॉयज कैलोरीमीटर, its calculations from where the 9 parts comes. So it's nothing but if you take in consideration the molar mass of water, then you'll realize that hydrogen combines with oxygen in the ratio 1:8:9. So 2-3 key points हैं जो कि ड्यूलोंग्स फॉर्मूला तक स्टूडेंट्स आपको याद रखना है। फर्स्ट इज यू शुड नो द स्कीमेटिक एंड यू शुड नो द फॉर्मूला फॉर ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू, क्योंकि न्यूमेरिकल आ जाता है एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कर लेना, और जो भी क्वेश्चंस अगर किसी को है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। जब भी लेक्चर में टाइम होगा आई विल टेक अप दैट डाउट एंड आई विल ऐड दैट H-O/8 slide for better understanding. Today I'll add that single slide for you. So this was all about your Dulong's formula, and the next thing that we can take up a slide is your characteristics of your good fuel. I expect other students to add in. Earlier there were 51, now 5 are not there. So just tell them that they should add in. मैम जो स्कीमेटिक है तो मैम एग्जाम में डायग्राम भी ड्रॉ करना होता है? हाँ एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई सेड। नो, स्कीमेटिक डायग्राम आपको याद करना है। कई बार क्या होता है एग्जाम में सिर्फ स्कीमेटिक आ जाता है कि ड्रॉ स्कीमेटिक और ड्रॉ द डायग्राम फॉर योर बॉयज और बॉम्ब्स कैलोरीमीटर, तो वो एक आ जाता है। फिर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, जैसे कि स्मॉल न्यूमेरिकल आई हैव गिवन यू, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। तो यू नीड टू नो द फॉर्मूला एंड यू नीड टू प्रैक्टिस दी स्मॉल न्यूमेरिकल्स। तो ये अभी तक का है। प्रिंसिपल का भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल और द वर्किंग ऑफ बॉयज और बॉम्ब्स कैलोरीमीटर, बट स्कीमेटिक भी आता है, तो यू नीड टू लर्न दैट। ओके, so this is the last slide for today, which is the characteristics of good fuels. So इसमें 8 points हैं। So the important points are high calorific value, ignition temperature, moisture content and non-combustible matter. तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमें ऑलरेडी पता चल गया कि अगर किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी, ओनली देन इट कैन लीड टू हाई एफिशिएंसी। ठीक है,
अगर कैलोरीफिक वैल्यू कम है, सीएनजी क्यों यूज करते हैं? सीएनजी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सीएनजी की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है? सीएनजी की कैलोरीफिक वैल्यू है 50,000, ठीक है, किलो जूल पर केजी। सो दिस इज द कैलोरीफिक वैल्यू फॉर सीएनजी। सो हाई कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल्स जो भी होंगे वो आपके इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दे विल हेल्प यू or provide you high efficiency. Second is ignition temperature. So ignition temperature should not be very high and should not be very low. If the ignition temperature is very high, then what will happen? The fuel will require a lot of energy to even start burning. ठीक है, बट अगर इग्निशन टेम्परेचर कम है, बहुत कम है, या मतलब लो टेम्परेचर पे भी अगर बर्न हो जा रहा है, देन यू नीड टू बी वेरी कॉशियस एंड यू नीड टू डिज़ाइन स्पेशल चेम्बर्स, जैसे कि पेट्रोल का केस है, या फिर हाईली फ्लेमेबल आपके वो फ्यूल्स हैं, ठीक है, एलपीजी है या कोई भी इस टाइप का फ्यूल है जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, then in that case you need to design special chambers or special engines or containers for such fuels. तो ignition temperature moderate होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट तो कम ही होना चाहिए, बिकॉज मॉइस्चर कंटेंट यू कैन सी इट फ्रॉम द नेट कैलोरीफिक वैल्यू फॉर्मूला कि मॉइस्चर कंटेंट आपका कैलोरीफिक वैल्यू रिड्यूस कर देता है, ठीक है। यहाँ पे है ना ये फॉर्मूला, वी आर रिड्यूसिंग द हीट टेकन अप बाय द मॉइस्चर कंटेंट। तो ये हीट आपका रिड्यूस होती है, तो मॉइस्चर कंटेंट शुड बी लेस इन दैट फ्यूल। सेकेंड इज नॉन कंबस्टिबल मैटर। फिफ्थ पॉइंट इज नॉन कंबस्टिबल मैटर। सो नॉन कंबस्टिबल मैटर में आपका ये सारा मिनरल आ जाता है, जितना भी आपका सिलिका के ऑक्साइड्स हैं या कैल्शियम ऑक्साइड्स हैं, आयरन ऑक्साइड है, जो भी चीज़ जो भी मैटर फ्यूल में जल नहीं सकता, दैट इज योर नॉन कंबस्टिबल मैटर एंड इट विल रिड्यूस योर कैलोरीफिक वैल्यू। वी विल स्टडी अबाउट दिस इन द नेक्स्ट टॉपिक कि ऐश कंटेंट ज़्यादा होगा या इनऑर्गेनिक नॉन कंबस्टिबल कंटेंट ज़्यादा होगा तो कैसे इफेक्ट पड़ेगा। बट एक मोटी मोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका नॉन कंबस्टिबल मैटर जैसे कि सिलिका है या फिर इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं, ये कम होने चाहिए। सिक्स पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ बर्निंग। तो वेलोसिटी ऑफ बर्निंग शुड बी मॉडरेट, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि अगर ज़्यादा वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ बर्निंग का मतलब क्या हो गया, कितनी जल्दी जल जा रहा है आपका फ्यूल, या कितनी जल्दी कंबस्टन हो रही है। सो हाई वेलोसिटी लीड्स टू हायर रिक्वायरमेंट, whereas low velocity causes loss of heat due to radiation. अगर बहुत जल्दी चलेगा और आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस है तो आपको ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, जल्दी जल्दी आपको रिचार्ज करना पड़ेगा फ्यूल चेम्बर में। बट अगर बहुत कम है या लो वेलोसिटी है तो रेडिएशन की वजह से हीट लॉस हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ फ्यूल शुड बी मॉडरेट और आइडियली इट शुड बी लो। एंड स्मोक के बारे में बात करते हैं तो स्मोक शुड बी नॉन टॉक्सिक इन नेचर, ठीक है। जो भी गैसेस निकल रही हैं वो पॉल्यूशन या एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स यू कैन राइट एंड इलैबोरेट अबाउट व्हेन यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल क्या है, तो आप इसके बारे में और इलैबोरेट कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स and for CR of this class to forward it to other students who are not there, because I can see the attendance is 47 now, कि जो 4 बजे आपका IIT के साथ जो इंडक्शन प्रोग्राम है जिसका मैसेज ग्रुप पे दिया हुआ है, I would like all of the students to join in positively. I repeat, all the students should join in positively. इंडक्शन प्रोग्राम सबको ज्वाइन करना है, that is the message which has been given to me by Dr. Chinmay and the department. स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है। अच्छा, इसको ज्वाइन करने का रीज़न क्या है? ज्वाइन करने का रीज़न ये है कि यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल दी हाउ इंजीनियरिंग इज इम्पॉर्टेंट, हाउ योर एल्गोरिथम्स एंड योर फाइंडिंग रिसर्च किस तरीके से करना है, या फिर सोल्यूशन बेस्ड इंजीनियरिंग किस टाइप से करनी है। यू विल गेट एन इंसाइट इनटू इट। सो बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा रिगार्डिंग इंजीनियरिंग। सो आई वांट एवरीबडी, हर्ष गुप्ता, आई थिंक ही इज़ द CR of the class, so please circulate this message to everyone
I'm stressing it more that you should join the induction program positively. 4 o'clock पे है. The link is already given on the group, so join in. ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं. अगर किसी को डाउट है अभी भी, अच्छा ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला का वो जो साइन वाला स्लाइड है दैट आई विल चेंज एंड आई विल ऐड दैट OH minus O/8 वाला स्लाइड फॉर यू ऑल. तो आज तक की क्लास में अगर कोई क्वेश्चन है तो किसी को भी डाउट है, कुछ भी छोटा बड़ा कोई भी डाउट है, वो मुझे व्हाट्सएप कर देना. आई विल डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक. ठीक है, so I'll end the class here today and next tomorrow we will start with pole and in the next class we will study about proximate and ultimate analysis. मैम हाँ जी, मैम ये जो 4 बजे जो आपने बताया है इंडक्शन प्रोग्राम. ये हाँ इंडक्शन. क्या है? तो बच्चे आपकी आवाज़ कट गई, आप दोबारा बोलो, क्या बोल रहे थे? मैम ये जो जॉय ऑफ इंजीनियरिंग का जो आपने बताया है हाँ आज हाँ, अलग से लिंक आएगा ग्रुप पे. लिंक ऑलरेडी ग्रुप पे प्रेजेंट है, बट अगर नहीं किसी स्टूडेंट को मिल रहा है तो मैं दोबारा से भेज देती हूँ इसको. ठीक है, तो ये लिंक आपको 4 बजे ज्वाइन इन करना है. यूट्यूब पे है ये पूरा सेशन, लाइव हो जाएगा 4 बजे. So it will help you a lot regarding understanding your engineering and all, algorithm, critical thinking, problem solving, या फिर exploratory research करनी है, या एक approach आपकी change करनी है towards engineering. So एक अच्छा ये discussion होता है. तो I'll send the link again and I expect all of you to join in. We'll be keeping, हम भी join करेंगे, so we'll be keeping a check कि आप सब भी join करें. It's a good thing to join. ठीक है, चलो, have a good day. I'm ending the class today and the next class we will study about proximate and ultimate analysis. तब तक इससे पीछे किसी को भी कोई भी डाउट है so just message me. Okay, bye students, I'm ending the class. Thank you, ma'am. Okay, bye. Bye.